मैंने आज अगर इम्प्लांट लगाया मैम, विद इन 3 to 4 days, मैक्सिमम 3 to 4 days मुझे दांत लगाना ही है. आई कैन नॉट वेट. सो एडवांटेज, पहला पेशेंट को वेट नहीं करना पड़ा. जो 6 months 9 months वो परेशान हो तो वेट नहीं करना पड़ा. मेरा एक यंग जनरेशन से कि वो विजडम टूथ अगर आपको परेशान करता है, डोंट वेट फॉर इट, उसे निकाल देना चाहिए. Namaskar. Meet Dr. Arun K. Vengani Jain, a highly skilled oral and maxillofacial surgeon and implantologist who is the head of Simpladent Concept, Surat. He has an impressive educational background, including a top honors degree and a Chancellor's Gold Medal. Dr. Vengani has also gained international experience and training in Munich, Germany, which enables him to provide world-class experience and care to his patients. With over 8 years of experience in the field of dentistry and 7+ years of experience in advanced implant techniques, Dr. Vengani is a seasoned expert in his field. Hello, Doctor. જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય જીનેન્દ્ર. Can you please tell us about your journey and how did you proceed with oral and maxillofacial surgery and what inspired you? Let's say मैम, when I came to dentistry, I didn't even know कि oral surgery ऐसी कोई branch भी होती है. I started attending clinics in 3rd year, then I get to realize okay, dentistry में भी एक ऐसी branch है जो orthopedic surgeon, ENT surgeon, plastic surgeon, onco surgeon और जो skin and VD वाले थे इनको combine करती है for face part. So I get fascinated. Okay, it is somewhat interesting surgical part. So because of that kick, second is having already surgical background. My father is a gynecologist, so since childhood था कि surgeon बनना है. All this thing has set my mind. Okay, let's stop the surgery branch. And today I am feeling not exactly proud, but I feel honored to get this degree, ma'am. That's great. Dr. Arun, आपकी education की timeline क्या थी? You can say, ma'am, from 2010 to 15, I did my graduation from Daman, followed by next year. I got through this entrance exam. I didn't get high score, but I want to opt it from government seat. My father told me, "बेटा अपने से नहीं होगा. If you want, you can take an admission. It's fine." So very next year, from 2016 to 19, I selected oral surgery branch. I did my post graduation from Kota. After completing that, or you can say during that time also, I was involved in immediate implantology because Dr. Vivek has one of his course done in my college. So I was interested, influenced by him. Finishing my post graduation in 2019, then I joined the IF Master program. IF Master, I have trained myself. Later on, I have been offered, and now I am IF teacher. So officially, I am a teacher to teach the new trainees, new budding surgeons to how to place immediate implant system, immediate functional loading implant system. Since you are a teacher, of course, एक सवाल आता है कि आपकी top honors degree आपको मिली and of course it must have been a lot of work. So how was your experience? How did earning a top honors degree and of course a Chancellor's Gold Medal, how did it affect you and how difficult was it? मैम, इन अ सार्काज्म वे, ये डिग्री मिली नहीं मैम, इसे मैंने खरीदा है. खरीदने के लिए मेरे हार्डवर्क लगा, पर्सनल टाइम लगा, एफर्ट्स लगे, स्लीपलेस नाइट लगी. एंड आई हैव, यू कैन से, पीजी कॉलेज फ्रॉम 9 to 3 होता था. सो आफ्टर फिनिशिंग दोज क्लिनिकल आवर्स आई यूज्ड टू गो टू सिटी टू असिस्ट द अदर डॉक्टर्स फॉर सर्जरी. सो राइट अवे इस टाइप से मैम अकेडमिक्स में, क्लिनिकल और अकेडमिक्स मैंने दोनों कवर किया था मैम. 2019 में मैंने MDS RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस जो है वहाँ की, उसमें मैंने MDS जितने भी फील्ड है उन सब में मैंने टॉप किया था. सो आई डिड यूनिवर्सिटी टॉप. एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी है कि वो मास्टर डिग्री में गोल्ड मेडल सबको नहीं देते. जितने भी मास्टर डिग्री वाली फील्ड है उन सब का कंबाइन करके वो सिर्फ एक गोल्ड मेडल देते. हर साल का एक फिक्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी ब्रांच हो. सो उन्होंने उसको नाम दिया था चांसलर्स गोल्ड मेडल. सो 2019 का चांसलर्स गोल्ड मेडल उन्होंने मुझे अवार्ड किया था. और ये गोल्ड मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, जो मुझसे जुड़े हुए, मतलब वो प्राउडली कह सकते कि भाई अरुण हमारा फ्रेंड है, रिलेटिव है, सीनियर है, जूनियर है, कि जो चांसलर्स गोल्ड मेडल लेके आए. सो इट इज नॉट जस्ट फॉर मी, इट इज ऑल फॉर माय वेल विशर्स. You are too humble, I must say. Coming to your professional experience, what
what actually is the Simpladent concept? Right, ma'am. See, we are talking about the implant. You can say fixed teeth within 48 hours to 72 hours. So, Simpladent is associated with one of the foundation, which is known as IF, or more precisely, International Implant Foundation, as it has mentioned. So, they are the one who has one of the most evidence-based study. मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा रिसर्च किए इमीडिएट इम्प्लांट्स पे, फॉलोड बाय उनके पास रिसर्च डाटा, कोई अगर चीज़ खराब बात उसे कैसे करेक्शन किया. सो दे हैव ऑल कलेक्टिव डाटा इन रिसर्च डाटा. So this Simpladent is their implant company. So to achieve this Simpladent concept, first you have to be trained enough to do yourself implant. Second, you have to be trained enough to correct the others failed implant also. Of course, So yes. this kind of thing has make me one of the nominees that I can hold this Simpladent concept clinic in Surat. Talking about the clinic in Surat, what exactly is your role and आपकी दिनचर्या क्या होती है सर? Okay, मैम मेरा सिर्फ दो चीज़ है, या तो काम या तो आराम. It is like that. Morning 10 to 1 is my usual OPD time, evening 5 to 8. In between अगर कोई surgeries रहती है मैम, so I operate them. I have a team who take general dentistry care as well as special care was taken for surgery by me. यानी जो सर्जरी के केसेस है वो सारे मैं ऑपरेट करता हूँ वहाँ पे, और जनरल काम मेरी टीम देखती है मैम. Simpladent क्लिनिक जो है मैम, इसका एक्सक्लूसिव फोकस है इमीडिएट फंक्शनल लोडिंग इम्प्लांट्स पे. सो ये है कि मेरा रोल मेन ये रहता है कि जो न्यू केसेस है उन्हें मैं ऑप्शंस दे सकूँ इस चीज का. आई डोंट फोर्स देम, आई जस्ट गिव देम ऑप्शन. ऑप्ट करना उनकी बात है. सेकंड, कोई पेशेंट है हु इज फेसिंग ट्रबल फ्रॉम अ डेंटल ट्रीटमेंट विच ही हैज गेट इट डन फ्रॉम अदर क्लिनिक, जी. सो उन्हें भी लुक आफ्टर करना, फॉलो अप्स देना. सो ऑलमोस्ट मैम मेरा ये शेड्यूल रहता है. रेस्ट ऑफ टाइम आई प्रेफर टू स्पेंड विद माय फैमिली. That's great. A balance between personal and I have private to. life is important. Dentistry और surgery की field में जो आपको लगा कि चलो this is a very big change. मैम विद टाइम मेडिकल फील्ड ऑलवेज इवॉल्व्स. जो चीज़ आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन करिकुलम, ये बुक्स में या हमें कॉलेज में नहीं समझा, क्योंकि उस टाइम ये ट्रेंड में ही था, बट ये साइंस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था, सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड. सो यू कैन से दिस इंटरनेट एरा, स्लोली जो ट्रेंड्स है या जो साइंसेज है विच इज यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ सिटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री बॉर्डर्स, सो ये आज के टाइम में इजी हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इजी टू रीच, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कम्युनिकेट एंड हैव अ डिस्कशन मैम. सो इट इज अ गुड साइन. As I mentioned to the viewers, Dr. Vengani has also done training in Munich, Germany. How did your international training influence the way you practice dentistry? Actually मैम, international training, what I say is, and I always say that Indian doctors are one of the best doctor, surgeon, whatever in entire world, because we have a large number of patients, we have a large number of cases, variety of cases आते हैं. और सेकेंड है मैम, अगर आप हम लोग का इतिहास खोल के देखेंगे, सो सुश्रुत संहिता और ये सब इतनी पुरानी बुक्स है कि जिसमें सर्जरीज मेंशन की हुई थी. सो हमारा ही साइंस है जो हम शायद इतना अच्छे से संभाल नहीं पाए, जी. और आज हम उसे रियलाइज करते हैं. ये साइंस को यूज करके फॉरेन में जो एजुकेशन वगैरह वो उसे यूटिलाइज करते हैं, और अब हम उससे ग्रैब करने जाते हैं. सो इट इज साइंस रिमेन्स ऑलवेज द सेम. ये है कि टाइम के साथ में हमें चेंज करना होता है कि कहाँ से हम उसे बेस्ट ग्रैब कर सकते हैं. लाइक एज यू सेड म्यूनिच जर्मनी, सो जो फाउंडेशन है वो वहाँ पे बेस्ड है. सो माई मेंटर्स, माई टीचर्स, दे आर फ्रॉम देयर. सो व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम देम इज अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वर्क, एक अलग तरीका जो इंडियन मार्केट में पहले नहीं था. एंड नाउ मी, माई एंटायर टीम इज ट्राइंग टू एग्जीक्यूट वो ट्रेंड तरीका इन इंडियन मार्केट, which is benefit for patients' quality of life. Yes, and then of course that brings me to my next question कि immediate loading dental implants आखिर होते क्या हैं? Right, मैम. पहले मैं थोड़ा सा वर्ड करेक्ट करना चाहूँगा. इमीडिएट लोडिंग की जगह मैं मैं चाहूँगा कि आप ये वर्ड यूज करें, इमीडिएट फंक्शनल लोडिंग इम्प्लांट्स मैम. Okay. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? खेल शब्दों का है अगर बोलना हो तो, और ऐसे देखा जाए तो खेल एक पूरा है. इमीडिएट इम्प्लांट्स का मतलब होता है कि एक दांत निकाला गया, दांत निकालने के बाद में आपने उसमें लगा दिया, इसे हम कह सकते हैं इमीडिएट इम्प्लांट्स. क्यों? क्योंकि आपने जिस टाइम दांत निकाला उसी टाइम आपने एक दांत लगा दिया. पर अब उस इम्प्लांट के ऊपर जो टूथ लगना है, जो दांत लगना है, उसके लिए एक वेटिंग पीरियड निकाला जाता है.
कि पेशेंट को 3 महीने या 6 महीने के बाद में, या फिर कई बार बोन नहीं बनते तो 9 महीना साल भर भी निकल जाते हैं, उसके बाद में उसे दांत दिया जाता है। इस पीरियड के लिए पेशेंट प्रॉपर खाना नहीं खा पा सकते क्योंकि उसके पास में कोई फिक्स सपोर्ट नहीं होता है। नाउ यूजिंग द टर्म इमीडिएट फंक्शनल लोडिंग, मतलब मैंने आज अगर इम्प्लांट लगाया मैम, विद इन 3 to 4 days, मैक्सिमम 3 to 4 days मुझे दांत लगाना ही है। आई कैन नॉट वेट। सो एडवांटेज पहला, पेशेंट को वेट नहीं करना पड़ा। जो 6 months 9 months वो परेशान है तो वेट नहीं करना पड़ा। एंड सेकेंड कि मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर कि बस दांत निकला उसी टाइम में इम्प्लांट भी लग गया और 2-3 दिन में दांत भी लग गया। Okay, can you walk us through the process of? ओके फाइन मैम। एकदम सिंपल फंडा है मैम। इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और अ बंगलो, तो सबसे पहला काम होता है फाउंडेशन लगाना। Yes. सो यू कैन से इम्प्लांट इज इक्वल टू फाउंडेशन, यानी आप जैसे जमीन के अंदर पिलर लगाते हैं उसी तरीके से टाइटेनियम स्क्रूज जो होते हैं उसे बोन में लगाया जाता है। सेकेंड आता है स्लैब प्रिपरेशन, यानी आप स्लैब बनाया जाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। सो उस टाइप का एक नोन है मेटल ट्रायल, कि जिसमें सेकेंड हम लोग एक ट्रायल लेते हैं। और थर्ड है इंटीरियर वाला पार्ट, जो आपका टीथ वाला पार्ट जो दिखता है आपको। सो इन 3 पार्ट को कलेक्टिवली इस ट्रीटमेंट का पार्ट गिना जाता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इम्प्लांट प्लेसमेंट, स्क्रू लगाना, ट्रायल हो गया और दांत लग गया। सो ये 3 स्टेप है इस इम्प्लांटोलॉजी के मैम। ये जो आपका इमीडिएट फंक्शनल इम्प्लांट्स हैं, जी। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट इट्स राइट करेक्टली, मैम। आई थिंक ये मेन पेशेंट्स के लिए होता है कि उनका कंफर्ट देखा जाए। एग्जैक्टली कंफर्ट से ज्यादा मैम मैं एक ऑप्शन भी बोलना चाहूंगा। मतलब इम्प्लांट्स को 2 पार्ट में मैं कैटेगरी करूँ, एक होता है डिलेड लोडिंग जो मैंने आपसे कहा जी, था, जी। एक होता है इमीडिएट लोडिंग। जी। अब कई बार पेशेंट को फॉल्स प्रॉमिस भी किया जाता है कि हाँ इमीडिएट लगा देंगे, लेकिन उसका इम्प्लांट लगाया जाता है, उस पर इमीडिएट दांत नहीं लगाए जाते। सो यू हैव टू बी प्रिसाइज पेशेंट को कि भी उसे Yes. क्या कहा जा रहा है। तो पहला तो वो चीज हो गया। सेकेंड मैम, डिलेड इम्प्लांट के कई सारे लिमिटेशंस हैं जी। कि उसमें बोन की क्वालिटी क्वांटिटी, ये मतलब कई सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। सो उनके जो लिमिटेशंस हैं, उसके कई सारे लिमिटेशंस को आप इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट से ओवरकम कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि भाई उसमें तो इतना टाइम लगता है दांत देने में, इसमें आप जल्दी कैसे दे सकते हो। डेंटल इम्प्लांट्स वो भी है, डेंटल इम्प्लांट्स ये भी है, पर इसका साइंस यहाँ पे, इसका साइंस यहाँ पे। बिल्कुल। डिलेड लोडिंग में उस बोन को एंगेज करते हैं जो टूथ के आसपास में। इमीडिएट लोडिंग में उस बोन को एंगेज किया जाता है जो इंसान जन्मता है तब से लेके उसके डेथ बेड तक, वो बोन का लेवल उसमें रहता ही है। सो दोनों बोन का मैकेनिज्म अलग है, इसलिए फंक्शन दोनों का अलग हो जाता है। बट डॉक्टर, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, वो आप इस पॉडकास्ट में क्लियर करिए कि क्या मिसकंसेप्शंस हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। जी मैम, कुछ तो नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उसमें से टॉप मोस्ट लेना जी। चाहूंगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अपना इंडियंस का एक रहता है कि ये कितना चलेगा। सो जब कोई ओल्ड एज पेशेंट आके मुझसे कहता है कि भाई ये इम्प्लांट्स कितने टाइम चलेगा, सो मेरा एक रहता है ऊपर वाले ने जो आपको नेचुरल टीथ दिए थे आप उसे प्रिजर्व नहीं कर पाए, ये तो आर्टिफिशियल मैन मेड चीज देना। कोई भी चीज को आप जितना मेंटेन रखेंगे, मेंटेनेंस मेंटेन रखेंगे, वो चीज आराम से चल पाएगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कोई भी चीज कितना चलेगा वो पेशेंट के पहले खुद पे कि वो उसे कितना अच्छा मेंटेन रख पाता है। अगर आपके घर में कोई इक्विपमेंट है, कार है, आप उसका अगर प्रॉपर टाइम पे सर्विसिंग करवाएंगे, चेकअप्स करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। सेम एज विद पेशेंट। सेकंड मोस्ट कंसेप्शन आता है कि कई बार पेशेंट के सुनने की आदत होती है कि उनको मन में एक चीज फिक्स होता है और उनको वही सुनना होता है। अब जैसे कोई एक पेशेंट है, मेरे किसी और क्लिनिक पे दिखा के उसे बोला गया कि आप रिमूवेबल डेंचर्स, फोल्डिंग डेंचर्स जो कॉमनली ओल्ड एज Yes. आपके और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने पहना होगा, वो बन जाएगा आप में, इम्प्लांट्स आप पे नहीं लग पाएंगे। ठीक है, वो एक सेकंड ओपिनियन के लिए अगर मेरी क्लिनिक पे आया, मैंने उसे कहा इम्प्लांट्स लग सकते हैं, सो उसे मेरी बात डाइजेस्ट नहीं होगी। True. उसे डाइजेस्ट होगी कि नहीं लग सकते तो ये क्यों करवाना चाहते हैं, बिकॉज मैं उसमें डिफरेंट टाइप के इम्प्लांट्स यूज करना चाहता हूँ। Yes. सो दैट मेक्स द डिफरेंस। थर्ड है कि इतनी जल्दी कैसे हो जाता है। हाँ। ओके मैम, तो इसका ये है कि एक वक्त था जब एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज देना होता था, सो खत लिखा करते थे, लव लेटर्स कबूतरों में बांध के उड़ाए जाते थे। जी। अब आज जस्ट आप टेक्स्ट करो, पहुंच जाता है। सो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह फास्टर वे में पहुंच गया। सो इट इज मोड ऑफ ट्रीटमेंट विच हैज चेंज्ड। डेफिनेटली, आई थिंक मेरा अगला सवाल पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे सवालों के आप जिस तरीके से जवाब देते हैं कि जिन पेशेंट्स में डेंटल एंजाइटी होती है या सर्जरी का फियर होता है, उनको आप कैसे समझाते हैं?
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं 3 पार्ट में से डिवाइड कर देता हूँ यूजुअली, कि सर्जरी से पहले पेशेंट्स के साथ मैं एक टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ कि उन्हें मैं ज़्यादा समझाता नहीं हूँ मैम, कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें उनमें फ़ियर और बढ़ा देती है। True. उनके जो सन होते हैं, डॉटर होते हैं, या जो उन्हें लेके आते हैं, मैं उन्हें पूरा ट्रीटमेंट ब्रीफ करता हूँ। जी. पेशेंट का ये रहता है, आपको बस मुँह खुला रखना है, मैं काम करता जाऊँगा, आपको जब ब्रेक चाहिए जस्ट लेट मी नो एंड आई एम गोइंग टू गिव यू फिक्स टीथ, जिससे आप घर जाके खाना खा सकते हो। सो आधी चीज़ उनका इसलिए काम हो जाता है कि भाई हाँ, कुछ ज़्यादा तो होना है नहीं। सेकंड, वी गो थ्रू अ थरो प्री ऑपरेटिव चेकअप्स। आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशन से लेके हार्ट कंडीशन से लेके हर चीज़, किसी में भी अगर डाउट लगता है मैम, सो आई ऑलवेज टेक देयर फिजिशियंस ओपिनियन और कंसेंट कि भाई ये चीज़ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, उनसे क्लियरेंस लेता हूँ। अब सर्जरी के टाइम पे जो उम्र वाले होते हैं उन्हें कई बार भजन सुनने का इस तरीके का शौक होता है, सो इट्स ओके, वॉट एवर दे वॉन्ट टू लिसन मैं अलाउ करता हूँ। सेकंड है, वो एक डेंटल चेयर पे लंबे टाइम तक बैठ नहीं पाते, कई बार उनको यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, बार बार बाथरूम जाना होता है, बैक पेन होता है, सो आई ऑलवेज अलाउ देम विथ पेशेंस। ऐसे नहीं कि भाई बस बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, यू टेक योर ओन टाइम। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो एक डॉक्टर कंफर्टेबल रहेगा। एंड इसके बाद में उनके फॉलोअप्स मैंडेटरी है उनके, उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आज आपका चेकअप है, ये आपका चेकअप है, आपको मेंटेन रखना है। और रही बात मैम डर की, तो आप किसी के मन से डर नहीं निकाल सकते हो, बट उस डर से लड़ने की आप हिम्मत उसमें जरूर डाल सकते हो मैम। Definitely, you are very considerate, I must say. What are some of the latest technological advancements in the dental field, especially in the field of dental implants, that excite you the most? मैम इट इज गेटिंग फास्टर एंड फास्टर विदाउट गेटिंग कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्वालिटी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक इम्प्लांट डिलेड से इमीडिएट में आ Yes. गया, जबकि ये बात अलग है कि सबसे पहले 20th सेंचुरी में सबसे पहले इम्प्लांट यूजुअली इमीडिएट ही हुआ करते थे, फिर वो फेल्ड हुए, फिर डिलेड आए। तो ये रिसर्च किया गया कि इमीडिएट फेल क्यों हुए, और जब इमीडिएट को इसको वापस कम बैक करवाना था, तो इसका कम बैक बहुत अच्छे तरीके से हुआ मैम। सो 2003-5 से ये चीज ऑलमोस्ट रिसर्च होने लगा हुआ है। सो आई लाइक कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हैज एनहांस्ड। सेकंड है मैम, आज जैसे मार्केट में आप देखें ना मैम, तो कई सारे मटेरियल के चॉइसेस अवेलेबल एक डेंटिस्ट के पास में अवेलेबल है कि वो किस टाइप का क्वालिटी ऑफ, मतलब मैं बुरा क्वालिटी नहीं कहता हूँ, हर एक चीज का अपना अपना क्वालिटी होता है Yes. विच डिफर्स प्राइस। तो वो एक रेंज आज कंपटीशन की वजह से इजीली एक्सेसिबल है। अगर मुझे कोई बाहर की कंपनी का कोई प्लेट चेंज, जैसे मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, तो जो रोड एक्सीडेंट केसेस होते हैं जिसमें किसी का जॉ फ्रैक्चर होता है, तो उसमें जो चीज यूज करना है, इफ आई वांट टू यूज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, इट इज इजीली अवेलेबल इन मार्केट, मुझे कोई लंबा चीज। सो टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकंड इज इकोनॉमिकल हो गया मैम, एंड थर्ड इज कोई भी चीज का जो एजुकेशन है वो आज के टाइम में बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया, कि लोग चीजों को शेयर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने लिख लिया एक डायरी में, उसे मैंने छुपा के रखा और मेरे मरने के बाद वो साइंस चला गया। आज के टाइम में लोग आर्टिकल पब्लिश करते हैं और डिबेट डिस्कशन से जाना पसंद करते हैं। डॉक्टर अरुण, आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, जी। हेड हैं सिम्प्लाडेंट जी। कॉन्सेप्ट सूरत के। सिम्प्लाडेंट कॉन्सेप्ट सूरत में कैसे फोर फ्रंट में रहता है डेंटल टेक्नोलॉजी में, कैसे अपने पेशेंट्स को मतलब ट्रीट करता है, एंड इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड के पेशेंट्स आते होंगे, आई एम श्योर। जी मैम। सो हाउ डज इट स्टे इन द फोर फ्रंट? मैम मेरा सीधा कंसेप्ट है, आई यूजुअली डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस। जो भी पेशेंट है, चाहे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है, जो भी है, आई गो थ्रू इन अ पोलाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। सेकंड है, जब वो हमारे यहाँ विजिट करते हैं, सो जैसे मैंने बोला प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसके बाद में ऑप्शंस दिए जाते हैं। मेरा काम है ऑप्शन देना, पेशेंट का काम है ऑप्शन सिलेक्ट करना, सेकंड मेरा है कि उस ऑप्शन को फुलफिल करना। एंड डेफिनेटली मैम, लाइक आप कह सकते हैं कि कई सारे एनआरआई क्लाइंट्स भी आते हैं। अब जैसे मैं सूरत में रहता हूँ मैम, तो एक कहावत फेमस है, सूरत नु जमण अने काशी नु मरण। इसका ये मतलब है कि काशी में मरने में जो पुण्य मिलता है, सूरत में खाने में वो पुण्य मिलता है। सो अगर कोई पेशेंट आता है सूरत में खाने के लिए, अब उसके पास में वो टीथ ही नहीं है तो कैसे खाएगा? सो आई एम देयर टू फुलफिल दिस विश। एंड ऑफ कोर्स, ये तो हम सूरत की हमने बात करी, पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के जी। आते हैं। आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड आप काफ़ी अलग अलग जगह से आप पढ़े, जैसे आपने जी। बताया। तो ऐसे क्या अपकमिंग ट्रेंड्स हैं या इनोवेशंस हैं डेंटल इम्प्लांटोलॉजी में जो आप फोरसी करते हैं कि यू आर एक्साइटेड कि मे बी दिस विल हैपन इन द नियर फ्यूचर? मैम आई बिलीव के टाइम इज फाइन, क्वालिटी और इम्प्रूव होनी चाहिए कोई भी चीज़ की हो।
सेकंड एडवांसमेंट आना चाहिए कि जिसमें पेशेंट को मिनिमम ट्रॉमा हो, मतलब मिनिमम तकलीफ बेयर करनी पड़े, और डॉक्टर के लिए भी वो सर्जरी या वो जो भी प्रोसीजर है वो करना इजी रहे, हार्डशिप नहीं रहे। True. एंड जो भी हो मैम, बेनिफिट दोनों का होना चाहिए, सिर्फ पेशेंट का भी नहीं, डॉक्टर का भी। सो Of course. everyone has to be in their comfort zone and profit zone. True. And what are the biggest challenges you face in your practice and how do you overcome them? मैम लाइक व्हेन आई फील दैट आई हैव अ ह्यूज चैलेंज, बिग चैलेंज, तब मैं उनको इमेजिन करता हूँ कि जिनके पास मेरे से बड़े चैलेंज थे, सो उन्होंने कैसे ओवरकम किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैम, हार्डशिप मुझे इतनी करनी नहीं पड़ी। नहीं करनी पड़ी से मतलब ये है कि पेरेंट्स जो होता है वो अपने बच्चों के लिए एक थ्रस्टर्स का काम करते हैं, जैसे एक रॉकेट में एक थ्रस्टर्स होता है कि वो उसे स्पेस में डिप्लॉय करने का काम करते हैं। तो पेरेंट्स वही होते हैं कि वो आपको आगे बढ़ाने के लिए अपना टाइम, सब चीज डेडिकेट कर देते हैं। बुक्स आपके पास में आती है, बस हार्डशिप मेरे लिए थी नहीं, मुझे सिर्फ उस चीज को पढ़ना था, मुझे उस चीज को एग्जीक्यूट करना था। सो आई फील के मैं ऐसे नहीं, वो चैलेंजेस नहीं आई आई और चली गई, और जो चैलेंजेस नहीं गए उनको मैंने छोड़ दिया। This is your humility speaking. You are too kind. नहीं, नहीं, and true. एक इंटरप्ट करना, एक छोटा सा बात, जब मैं 2019 में सर्जरी कंप्लीट करके निकला था और इम्प्लांट्स में करता था, इमीडिएट इम्प्लांट्स। सो उस टाइम पे वो कहते हैं ना, अच्छा ये नया खिलाड़ी आया, न्यू रुकी इन इंग्लिश टर्म्स कहा जाता है, न्यू, ये क्या कर लेगा। मैं उन चीजों को एकदम लाइटली लेता था। तब मुझे फील पेशेंट्स के लिए होता था कि जिनको मैंने हाँ बोला है, उनको मेरा हाँ राज नहीं है, उनको कहीं और का शायद ना राज आ गया, तब मुझे फील होता है। लेकिन उसके बाद में मैंने रियलाइज किया कि जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे हाथ में लिखा है, वो चाहे 7 समंदर पार भी बैठा होगा ना, वो मेरे हाथ में होने वाला है। Talking about your patients, can you share a memorable case किसी patient का? There are so many of cases, but few cases are there that has make me feel like टर्निंग चेंज, आप टर्निंग पार्ट ऑफ माई लाइफ कह सकते हो। वन ऑफ माई नोन अंकल जो है मेरे मासा जी, उनको मैंने 2020 में ऑपरेट किया था। वी मेट इन जस्ट एक फंक्शन था, मैरिज फंक्शन, एंड ही टोल्ड मी कि सर्जरी करते हो ना तुम, मैंने कहा तो मुझे बोन ग्राफ्ट करवाना है। ट्रू स्टोरी मैम, कि मुझे डेंटल इम्प्लांट्स लगाने हैं, पर ऐसे कहा गया कि आपके पहले बोन ग्राफ्ट की सर्जरी होगी, उसके बाद में इम्प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो तू भी तो सर्जन नहीं है, तो तू ग्राफ्टिंग कर देगा। मैंने बोला कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर किस लिए इम्प्लांट्स चाहिए ना आपको, आपको टीथ चाहिए ना। अगर मैं वो सर्जरी किए बिना आपको फिक्स टीथ दे देता हूँ, विल इट बी ओके फॉर यू। नेक्स्ट डे उन्होंने सारे एक्सरे इन्वेस्ट, मैंने जस्ट एक वर्बली बोला, नेक्स्ट डे पूरी फाइल लाके मेरे टेबल पे रख दी। विद इन अ वीक, मतलब मैं सारे इक्विपमेंट्स मंगाऊं करूं, अ वीक के अंदर मैंने उनका ऑपरेट किया, उन्हें फिक्स टीथ मैंने दे दिया। एंड लाइक दैट वाज अ फीलिंग फॉर मी कि मैं, वो फर्स्ट मेरे फैमिली केस थे कि जिनको मैंने इतना बड़ा काम किया, एंड दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। टिल डेट ही इज गिविंग मी सो मेनी लाइफ लेसन्स, एडवाइजेस ऑफ स्टॉक मार्केट कह सकते हो, लर्निंग्स कह सकते हो, कि कोई भी चीज का एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह वो मुझे आते थे। These are his blessings. His blessings, and no, many of my patients are ma'am, mostly of you can say 50-60 plus wale, so they have so many potentials, knowledge, but they don't have energy, so they try to share it, but there are very few who try to grab them things ma'am, and if you will grab those experiences na ma'am, unmatchable match for them. True. And is this the most rewarding part of your No work? ma'am, there are one more case, Indian patients who stays in Berlin, he called me, so I thought बाहर से आया फोन तो अननोन नंबर होगा, कौन उठाएगा। 2-3 बार कॉल आया मैम, जब मैंने उसे उठाया फोन को तो उन्होंने कहा कि आप इम्प्लांट्स करते हो, इमीडिएट वाले, ग्राफ्टलेस वाले वर्ड्स उसने सारे वो यूज किए। मैं बोला सर मैं अपने पोस्ट यूज में फेसबुक इंस्टा पे पोस्ट नहीं करता हूँ, मेरा है कि मैं लिमिटेड रखना चाहता हूँ। तो मुझे था कि फेक कॉल है। बोला नहीं सर, मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा है। उस टाइम पे मैंने मेरा एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें 25 पेशेंट की केस सीरीज मैंने डॉक्टर गौर सर ने मेंशन की थी। तो वो पेशेंट आर्टिकल के थ्रू गया, उसमें उन्होंने मेरा नाम अरुण बेंगानी देखा, बेंगानी सर जैन, सो ही वाज आल्सो जैन पेशेंट। तो बोला मुझे आपसे इम्प्लांट करवाना है, एक दांत का करवाना है। जी. सो ही ट्रैवल्ड फ्रॉम देयर टू इंडिया टू गेट इट ऑपरेटेड। And what a feeling of victory it must मैम have आई been. वाज लाइक कि इतना सर्च करके ही took my number from IF Foundation from there, and one more short case we can edit it. One more small case I want to share. A patient age 90 plus, उनको फिक्स्ड डेंचर्स था उनके मुंह में। आई डोंट हेट डेंचर्स, अगर पेशेंट जो है, जो मरीज, अगर वो निकालने पहनने वाले दांत से कंफर्टेबल नहीं है तो वो नहीं है। सो उनके डेंचर बार बार गिर जाते थे। ही इज 90 प्लस ईयर ओल्ड, ही कॉल्ड मी, मुझे फिक्स करवाना है। तो मैंने बोला इस एज में
हेजिटेशन होता है कि भाई वो बोले कर सकता है, मैं कर सकता हूँ तो कर दे। ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, दो इंसान उनको पकड़ के मेरे चेयर पे बिठाते थे। सो दैट वाज माय मोस्ट एजेड पेशेंट कि जिनको मैंने ट्रीट किया। सो दिस 3 केसेस आर देयर व्हिच आर लाइफ लेसन्स फॉर बट डॉक्टर आई थिंक यही छोटी बातें तो नहीं बोलूंगी, यही ऐसी चीजें होती हैं जो इतनी रिवॉर्डिंग लगती हैं कि आपको लगता है यस आई एम मेकिंग अ डिफरेंस। मी। जी मैम, फीलिंग आती है, वो फीलिंग आती है जब उनके टीथ लगाते हैं, उनको मिरर दिखाते हैं और वो जो एक स्माइल बनती है ना मैम, यस, वो उस टाइम पे आपको लगता है कि कुछ किया है मैंने। वंडरफुल वंडरफुल। आपके इतने रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस हैं, ऑफ कोर्स इसके पीछे की मेहनत वन कांट इमेजिन, यू आर जस्ट बीइंग टू हम्बल, आई एम श्योर। व्हाट एडवाइस will you give to the young dental students or students who aspire to get into the field, who want to aspire, who want to specialize in dental implantology? मैम टू बी ऑनेस्ट, आजकल एक टुडे इज अ ट्रेंड, लाइक शो ऑफ ट्रेंड इज देयर। फ्यू पीपल दे शो ऑफ फ्यू केसेस के हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता है मैम। लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि कई सारे लोग कई बार फोन करते हैं कि भाई आगे एमडीएस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इम्प्लांट सीखना है हमें, इम्प्लांट सीखना है हमें, तरीका बताइए। तो मैम ये उनके मन से नहीं होता है, वो तब करते हैं जब इस तरह की कोई चीज को देखते हैं तो उनके मन में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला भी आ जाता है कि भाई दुनिया ये करी, मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो Yes. मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, आप दुनिया को छोड़ दो, आप वो करो जो आपको पसंद है। डेंटिस्ट्री में इम्प्लांट एक सेक्टर है, इम्प्लांट पूरी दुनिया नहीं है। डेंटिस्ट्री में इट स्टार्ट फ्रॉम सिंपल फीलिंग, रूट कैनाल, ब्रिजेस एंड क्राउन, टूथ को एक्सट्रैक्ट करना, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। सो इम्प्लांट ही सिर्फ दुनिया नहीं है, लेकिन लोगों ने उसे बना दिया है। सो मेरा ये बोलना है कि आपको जो पसंद है वो करो, फिर वो इम्प्लांट्स हो या फिर वो चाहे कोई भी चीज हो। और सेकंड है, अगर आप कुछ करते हो तो आप अपने केस का प्रेजेंटेशन बनाओ, ना कि शो ऑफ बनाओ। Show off creates a bad impression. Presentation will help other how to do a case, ma'am. Yes, of course. And doctor, how does continuing your education and training help in maintaining your expertise in the field? Ma'am, you have to keep yourself updated if you want to survive in market. Market means medical field में आपको अपने आप को equipped रखना है। डार्विन्स थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो ट्रेंड्स को अडेप्ट करेगा, जो चीजों को सीखेगा, रिजिड नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, वो आदमी फ्लरिश करेगा। सो यस, आप चाहे 50 ईयर, अगर मैं आज बैठा हूँ, इफ आई विल लिव फॉर 50 60 70 ईयर्स, उस टाइम पे भी मैं अपने आप को एकेडमिकली और क्लिनिकली दोनों तरीके से मैं अपडेट रखना पसंद करूंगा कि मेरी फील्ड में कोई रिसेंट ट्रेंड आया तो मैं उसे जरूर सीखना चाहूंगा मैं। सो मैं अपने लिए, मैं सभी को बोल रहा हूँ कि आप रिजिड मत बनिए, जो भी नई चीज आती है यू जस्ट ट्राई इट। अगर आपको एक्सेप्ट हुआ आप करो, नहीं हुआ तो साइंस को बुरा मत बोलो, जो अच्छा करते आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हो। डॉक्टर अरुण, ये जो आपका पैशन है, जी what drives this passion, you know, in your field and in patient care? मैम मोस्टली मैं वो हूँ जो काम करने से थकता नहीं हूँ। मैं जब काम नहीं करता तब आई फील मोर टायर्ड। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माई वर्क, कि मुझे काम करना है, मतलब वर्कोहॉलिक नहीं हूँ, आई लव डूइंग माई वर्क। सेकेंड थिंग इज लाइक we have limited time on the earth. Whatever we are doing, we are paying the rent to God that He has blessed us this soul and this human soul. So मेरा ये है कि भाई लाइफ है, काम एंड एंजॉय दोनों होना चाहिए इस टाइम पे। You have to manage, you have to balance both the things. So this kind of things always drive me, like live as if एक quote है, Live every day like it's your last. your last day. Exactly, ma'am, exactly. Yes, talking about your balance, जो आपने बोला, how do you balance your personal and professional life? I was very bad. Last few years I have started improving myself कि दोनों को वक्त देना है। जब मैं यूजी कर रहा था तब दोस्तों को वक्त दिया, पीजी कर रहा था तब मैंने मेरे काम को वक्त दिया, उसके बाद मैं पेशेंट को देता। लेकिन उसके बाद में एक वेल विशर ने मुझसे कहा था कि अरुण, तुमने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनको तुम ये सब नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब तुम दुनिया से चले जाओगे तब उनको फर्क पड़ेगा। जस्ट उन पीपल को काउंट कर लो और उन्हें टाइम देना शुरू कर दो। सो सिंस देन आई ट्राई टू बैलेंसिंग एंड आई एम इम्प्रूविंग। आई विल नॉट एक्सेल, बट यस आई विल डेफिनेटली। Best wishes for Thank you that. so. And what are your hobbies besides dentistry? आई एम वेरी मच इनटू दिस थिएटर शोज, जो कॉमिक थिएटर शोज होते हैं। आई लाइक ट्रैवलिंग। एक टाइम था जब मैं खुद नुक्कड़ नाटक किया और इन सब में जो
एजुकेशनल जो होते हैं उसमें मैं Yes. अपने आप को इन्वॉल्व करना पसंद करता था. अब टाइम नहीं हो पाता है. अगर आज भी मौका मिले तो मैं इस चीज को ज्वाइन कर सकता हूँ. मैं वाली चीज That's great. You must visit some places, since you are in Delhi. है. And coming back to your field, what are your future goals for the Simpladent Concept Surat and also for your career? My goal is to I don't want to do a huge number of cases. I want to do a variety of cases. I want to do a quality of cases. So Simpladent clinics में के डोर्स हमेशा उनके लिए ओपन है जो नीडफुल है. इफ दे फील कि भाई दे आर थिंकिंग कि मुझे कुछ इमीडिएट टीच चाहिए या कुछ एक अलग टाइप का साइंस है मुझे समझना है या कोई भी चीज है तो उनके लिए सिंपलाडेंट क्लिनिक्स हमेशा खुला पड़ा है. मैम सेकंड है कि मैं सिंपलाडेंट क्लिनिक्स जो आज सूरत में आई वांट टू गिव इट अ रेपुटेशन ऑफ ये है इंटरनेशनल बट आई वांट टू गिव अ रिकॉग्निशन इन अमंग्स इंडियन पीपल कि भाई इस टाइप का भी कोई चीज एग्जिस्ट करता है. And how do you envision the future of dentistry and implantology in the next decade? आई ऑलवेज विश कि ऐसा कोई इन्वेंशन नहीं हो कि जिससे लोगों के दांत खराब होना बंद हो जाए वरना फिर हम सब डेंटिस्ट का विल बी अनएम्प्लॉयड. बट आई ऑलवेज विश कि कोई भी डिजीज आए तो उसके सामने उसका ओवरकम जल्दी आ जाए करे. Yes. इफ इट इज अ डेंटल इशू तो उसका भी सोल्यूशन है और ऊपर वाला बैठा है कि जब एक चीज का सोल्यूशन है तो वो दूसरी चीज हमेशा रेडी रखता है. एंड यस आई लुक फॉरवर्ड एज के एजुकेशन का भी स्टैंडर्ड अच्छा हो जिससे जो अपकमिंग डेंटिस्ट है वो अपने आप को एक्सेल कर सके, कॉन्फिडेंट हो सके और एथिक्स को मेंटेन कर सके. एथिक्स इज द इजीएस्ट वर्ड टू एडवाइस समवन, हार्डेस्ट टू फॉलो. डॉक्टर अरुण, इम्प्लांटोलॉजी के अलावा आपकी और क्या स्पेशलाइजेशंस हैं? बेसिकली मैम मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में. सो सिंपल टर्म में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे फेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कई बार किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया या हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ और किसी का थप्पड़ मारने पे हस्बैंड के दांत टूट गए या फिर जॉ टूट गया, ऐसा कुछ हो, सो उनके जॉ की सर्जरीज, छोटी बड़ी कैंसर की जो गांठ होती है जॉज में होती है उनकी सर्जरीज, ये कंप्लीट सर्जरी मेरे आई एम ट्रेन फॉर सर्जरी, आई ऑपरेट दिस सर्जरीज. और एक चीज है सर्जरी का जो मैं पसंद करता हूँ वो है अक्कल झाड़ निकालना, विजडम टूथ निकालना. आज की जो विजडम जनरेशन है उनको विजडम टूथ बहुत ट्रबल करता है. लाइक ड्यूरिंग एग्जाम्स या फीमेल्स जो होती है कई बार प्रेगनेंसी के टाइम में उनको अक्कल झाड़ परेशान करती है. सो मेरा एक यंग जनरेशन से कि वो विजडम टूथ अगर आपको परेशान करता है डोंट वेट फॉर इट, उसे निकाल देना चाहिए. आज अगर आप उस विजडम टूथ को निकालेंगे तो जब आप 60-70s में जाएंगे और तब अगर आप कभी मेरे पास इमीडिएट इम्प्लांट लगाने के लिए आएंगे, इमीडिएट फंक्शन लोडिंग इम्प्लांट, तो उस जगह पे बोन बन गया होगा और मैं इम्प्लांट लगा पाऊंगा. Oh, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट. that's a new information, I'm sure, for the आप generation. नहीं मानेंगे मैम कि विजडम टूथ निकालने के लिए लाइक कॉलेज में लोग वेट करते थे स्टूडेंट्स के, अरुण सर आएंगे तो उनके पास विजडम टूथ निकालना है. आज भी कई सारे ऐसे क्लिनिक्स है कि जो एक्सक्लूसिवली विजडम टूथ के पेशेंट्स इकट्ठा रखते हैं कि भाई जस्ट अरुण सर आएंगे उनसे आपका निकल पाएंगे. Just 2 days ago, before I traveling to Delhi, a patient came from around 45 to 50 किलोमीटर ट्रैवल्ड कि एक विजडम टूथ निकालना है, तो इतने दूर से बंदा सिर्फ वही ट्रैवल करना है. तो ये मेरा ब्रेड एंड बटर कह सकते हैं, मेरा मोस्ट लाइकली कि या इम्प्लांट से या विजडम टूथ है. और रात को 12 o'clock भी आप मुझे देंगे, आई एम रेडी टू ऑपरेट. That's great. Thank you. And आप गुजरात से हैं जी. डॉक्टर, आप हमारी गुजरात की ऑडियंस के लिए, गुजरात की यंगर जनरेशन, ओल्डर जनरेशन, मिडिल जनरेशन, जी. उनके लिए आप कुछ ओरल केयर एंड डेंटल केयर का क्या मैसेज देना चाहेंगे गुजराती में? ગુજરાતી में જય શ્રી કૃષ્ણ ગુજરાતી મિત્રો, મારા વડીલોને મારા પ્રણામ. હું એ કહેવા માંગુ છું તમને કે જો તમે એમ વિચારતા હો ચોકલેટ ખાવાથી દાંત બગડે, જો તમે તમારા છોકરાઓને ખીજાતા હો તો ચોકલેટ ખાવાથી ક્યારેય દાંત બગડતા નથી, પણ ચોકલેટને ખાધા પછી જો તમે એને સાફ નહીં કરશો તો તમારો દાંત જરૂર બગડશે. બીજી વસ્તુ એ કહેવા માંગુ છું કે આજે જે મેં આ વાત કરી પોડકાસ્ટમાં ઇમિડિયેટ ફંક્શનલ ઇમ્પ્લાન્ટ્સમાં એટલે 72 કલાકમાં ફિક્સ 32 વાળા દાંતની વાત કરી, એને મારે કોઈને સાબિતી આપવાની જરૂર નથી. આ એક પ્રુવન સાયન્સ છે. એમ આપણામાં કહેવાય ને કે પ્રત્યક્ષ ને પરોક્ષની જરૂર નથી હોતી. તો ઘણીવાર લોકો મને પૂછતા હોય છે કે આ શું છે, કઈ રીતે થશે ને શું એનું સાયન્સ શું છે, લોકો તો કહે છે આ છે. તો એ બધી વસ્તુ તમે તમારા દિમાગમાંથી કાઢી નાખો. જો તમારામાં પોસિબલ હોય તો જરૂર થશે. અને બસ એ જ કહેવા માંગુ છું, દાંતને સારા રાખજો, સારો એવો ખોરાક ખાઓ, તમે પણ ખાઓ અને લોકોને પણ ખવડાવજો. થેન્ક યુ સો મચ. જય શ્રી કૃષ્ણ. Thank you so much. જય ભારત, જય હિન્દ.